articles which we will study today, this chapter, ठीक है. और then जो है I will take one lecture on campus, ठीक है, about the radioactivity, so we can fulfill this year. So about the solved examples, make sure that you should prepare all the solved examples of the articles which I taught you, ठीक है. The thing is that the solved examples are easy to solve, ठीक है, because they already solved, and most of them I already have told you. And in case there are a couple of solved examples which I didn't told you because they were quite easy, so you should also prepare them so that they can be a part of your exam. So is it clear, beta? जी sir. Okay, so he is saying कि figure 2915, ठीक है. 2915 means that, एक second beta, still students are coming by. Second. 2915 figure is this one. This one is the 2915 figure, and in this you can see he is saying कि okay, you have a cylinder, ठीक है, with an conducting cylinder with an radius, inner radius of A and outer radius of B. You have to find out the magnetic field at point this which is inside this cylinder at a distance r from the center. So this is the main question about this article, this example. So he's saying the inner radius is of about 2 centimeter while outer radius is of 4 centimeter. Inner radius is A while outer radius is B. Inner is of 2 centimeter, outer is of 4 centimeter. Okay. The cylinder carries a current of out of the page, means that it is coming toward you, and the magnitude of current density is not given. He has not given you the current, he has given you the current density, which is given by J is equal to CR square, where C is equal to this one and R is in meters. So what is the magnitude of the magnetic field at a dot? ठीक है, when the radius of the when radius is, एक second, whose distance is this one, this dot जो है, we have to find out the value of the magnetic field at this dot. So this one is the dot here, this is the dot at which you have to find out the magnetic field. So he has already given you the एक second, but still coming back. He has already given you the current density. So simple is that first of all we want to find out the enclosed current, which we can find out by using the current density. So this is the relation for the current density integral over the आप मुझे बताएं करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है? करंट पर यूनिट एरिया, यही होती है ना करंट डेंसिटी. बेटा आवाज आ रही? Yes sir. Yes sir. J is equal to I by A. This is the current density. Okay. So when I want to find out the I, obviously this would be equal to J into A. यही होगा. Yes sir. जी sir. Okay, so using this relation, अब क्या हुआ है कि he used this relation I enclosed would be equal to integral J dA, ठीक है, where J has the value of CR square. We have to find out the value from limits are from A to R, and area, obviously it is a circle, so circle 2 pi r dr. So after recalculating it, C is the constant, so only thing that is varying is the distance, which is, एक second, okay, the distance which is varying from point A to point B. Why it is varying from point A to point B? ठीक है, again मुझे जाना पड़ेगा फिगर की तरफ. This is the point A, ठीक है, the cylinder is up to this point, so we are taking the distance, inner radius is A, so the distance that lies here is basically this one, ठीक है. So up to this point it is A, and then A to R. We want to find out the
this is the conducting wire, this is the cylindrical wire. Inner is there is nothing inside the center. ठीक है, this is just a cylinder. Inside at the center there is a loop या hole. So obviously it is just like a cylinder. आप ले लें, it is cell का outer shell ले लें, and inside सेल जो है वो सेल की कोई केमिकल्स वहां पे एग्जिस्ट ना करे, तो आउटर शेल जो है वो एक सिलेंडर क्रिएट करेगा. सो दिस इज द आउटर शेल. ठीक है, और वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, एक सेकंड, एट डॉटेड पॉइंट. ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम लोग कि जस्ट वी हैव पुट द लिमिट्स एंड वी हैव जस्ट solved it. After solving it, we were able to get the I in closed current. So then coming toward the next side, okay, using the Ampere's law, this is the Ampere's law, we will put the value of I in closed, which we calculated at this point, and B dot ds, obviously B integral जो है circular form में Ampere's, ये जो आपके पास they have taken the Amperian loop. तो Amperian loop का क्या है आपके पास, length किसके बराबर है, it is equal to 2 pi r, because it has circumference of 2 pi r. So we will take just b into 2 pi r and we will rearrange it, and after rearranging it the equation would become something like this one, and we will just put the values and this would be the answer here. ठीक है, so this is the example. ठीक है, for finding out the magnetic field, or जब when you have a cylinder, long conducting cylinder with some radius here. अच्छा, अब आ जाते हैं मेन आर्टिकल अबाउट द सोलेनॉइड एंड टोराइड. सो one of your group which were in lab 2 have performed the experiment regarding to both solenoids and torides. They found the frequency of AC, in which we use the concept of the solenoid, and in other case they determined the BH curve of ferromagnetic material, and in that case we use the toride here. So we will discuss both here, and you are already familiar with the solenoid. What are solenoid? It is the tightly wound wires on a cylinder. ठीक है, tightly wound wire on a cylinder. ठीक है, it is just like this one here. And in the case of the toride, solenoid, always remember that it is, since it is in the circular form, so you will curl your fingers in the direction of the current, and thumb will give you the direction of the magnetic field. It is totally opposite to that of the straight wire. ठीक है, अगर if you will take a single circular loop, and let's suppose this one here, if you are taking this single first loop and only this portion you are taking, this one, then you can consider it as a straight, and then you can again find out the direction of the magnetic field by using the right hand rule, in which we have a thumb in the direction of the current and fingers give you the direction of the magnetic field. But you have to find out the if you are trying to find out magnetic field by this method, then you have to take different portions of this coil from here, then from upper side, then from the other side, and then from this side, and the final result which you will get is that the magnetic field will be at the center. So it is quite easy for us to use the fingers in the direction of the current, and in the circular, when you have a circular coil, and thumb will give you the direction of the magnetic field. So always remember, when you have a circular coil, always use fingers in the direction of the current, and thumb will give you the direction of the magnetic field. It is totally inverse of the straight wire, in which you have a thumb in the direction of the current, while fingers give you the direction of the magnetic field. So in a solenoid, the magnetic field is always uniform and concentrated at the center. ठीक है, he has given this example, okay, how it is uniform and maximum concentrated at the center. He has taken just a coil, ठीक है, he cut it half. So visualize it just like के, एक सेकंड मुझे फिगर बनानी पड़ेगी, एक सेकंड, ये है आपके पास. ठीक है, आपने क्या करना है, यू हैव टू कट इट. कैसे कट करेंगे आप, ये यहां से लेके इससे आगे वाला पोर्शन आप सारा कट कर देंगे. ये सारा कट हो गया. सो ओनली पोर्शन दैट इज रिमेनिंग इज बिहाइंड पोर्शन. यही होगा.
अगर आप इसको विजुलाइज करें, आपके पास एक सिलेंडर, आप उससे हाफ में कट कर दें, ठीक है। आपने एक सेल दिया हुआ है, सेल इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड यू आर कटिंग इट हाफ, तो फ्रंट पोर्शन आप रिमूव कर दें, तो बैक पोर्शन क्या होगा आपका, वो आपने कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है कि बैक पोर्शन है हाफ करने के बाद। क्लियर हो गया बेटा? ये चीज समझ में आ गई कि ये ऐसे ही है कि नहीं? जी सर। बड़ी जल्दी समझ गए हैं यार सारे आज तो। चले, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज है कि एक साइड पे आपका करंट इंटर हो रहा है और एक साइड पे आपका करंट लीव कर रहा है, ठीक है। इंटर कहाँ से हो रहा है और लीव कहाँ से कर रहा है? आपका यहाँ पे देखें नीचे क्रॉस है, सो करंट इज, ये है आपके पास इनटू द पेपर है, ठीक है, एंड फ्रॉम द टॉप इट इज आउट ऑफ द पेपर। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर बैक पोर्शन की तरफ, तो यहाँ पे वही दे रहे हैं कि करंट इज इनटू द पेपर, ठीक है। तो अगर मैं इसे हाफ करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये हाफ है, तो यहाँ से इनटू द पेपर हुआ है, और टॉप पे आप देखें इट इज आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। सो इट मींस कि जब मैं कट कर रहा हूँ तो टॉप पोर्शन आउट ऑफ द पेपर दे रहा है और बॉटम पोर्शन इनटू द पेपर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंसिडर करें एक एक कॉइल, ठीक है, ये एक कॉइल है, ठीक है, बैक पोर्शन है उसका कॉइल का, दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ द कॉइल। करंट इज क्या है, आउट ऑफ द पेपर एट द टॉप एंड इनटू द पेपर एट द बॉटम। अब आप इसको जस्ट विजुलाइज करें कि यू आर टेकिंग दिस पार्ट ऑफ द वायर, ठीक है, एंड यू आर कंसिडरिंग इट एज ए स्ट्रेट वायर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे ऑलमोस्ट कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रेट वायर। सो व्हेन यू विल यूज द योर राइट हैंड रूल के थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द सराउंडिंग, तो क्या आएगा आपके पास? यही डायरेक्शन ही बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की। कोई एक बंदा मुझे बता दे कि ये बनेगी या डिफरेंट हो सकती है। क्यों भी अब्दुल हसीब? जी सर। क्योंकि बेटा करंट इट इज जस्ट लाइक, मेरा नहीं ख्याल आपको समझ में आई है कि आ गई है बेटा? अच्छा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, चले। किसी का माइक ऑन है बेटा, काइंडली ऑफ कर। अच्छा, ये अब आपने पोर्शन लिया है, इसको स्ट्रेट ले लें, ठीक है। ऐसे ले लें आप कि ये एक स्ट्रेट है, ठीक है, बाहर आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि यू शुड टेल मी कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आप कैसे बताएंगे? Thumb in the direction of current and curling finger magnetic field. और डायरेक्शन यही बन रही है क्योंकि इट इज टुवर्ड मी, करंट इज टुवर्ड मी, ठीक है। तो थंब विल बी इन माय डायरेक्शन टुवर्ड मी, और यानी आपकी तरफ होगी, और फिंगर्स विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। एंड इन द सेम वे एट द बॉटम क्या है, इट इज इनटू द पेपर, थंब विल बी अवे फ्रॉम यू, ठीक है, एंड फिंगर्स विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज समझ में आ गई बेटा? जी सर। ओके, अब आते हैं कि पॉइंट पी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज यूनिफॉर्म, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि व्हेन आई एम यूजिंग इट, ठीक है, in this scenario, when it is in the anti-clockwise, this is going in this direction. When it is clockwise at the center, it is going in this direction. But outside the solenoid, both are in opposite direction हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं both are in opposite direction? अब आप मुझे बता। जी जी सर जी, ये ऊपर वाले पॉइंट तो आउट ऑफ द पेपर हो गए, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट इनटू द पेपर नहीं होंगे? इनटू द पेपर है बेटा। ठीक है ठीक है, मुझे लगा आप कह रहे हैं दोनों पे आउट ऑफ द पॉइंट। नहीं नहीं बेटा, इट इज इनटू द पेपर, तभी आप देखेंगे इट इज इन द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड बॉटम इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी सर। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे जस्ट कंसीडर दिस पॉइंट पी, ठीक है, आउटसाइड द इनसाइड तो हमें पता चल गया कि बोथ विल हैव द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पे फील्ड ऑब्वियसली क्या होती जा रही है,
ये तो हमने क्लोजली लूप जो है वो दिखाया है यहाँ पे। इन केस के अगर हमारे पास फील्ड एक्सटेंड होती जाती है, क्योंकि अब तो इन्फिनिट एक्सटेंड करती है, तो आउटर साइड पे कैसे होगी सर्कल। मैं एक सेकंड बेटा मुझे दीजिएगा, सर्कल बना के मैं बताता हूँ आपको। इज देयर एनी फादर इन दिस क्लास राइट नाउ? Yes, सर sir. ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा। इसमें बेटा क्या चीज समझ में नहीं आ रही? सर हमारे साथ 6 फॉर्नर्स हैं शुरू से। ओके, what you are Yes, not sir. getting There is here? Farner. Okay, fine. What you are not getting here beta? Just the point of direction of Current. Okay. Okay. This is a straight wire. What would be the direction of the magnetic field? Current is in the upward direction. Obviously, it will be like this one. Okay. With direction of the magnetic field is just like this one. यही होगा बेटा. It will be along the, क्या होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज करंट इज इन द अपर डायरेक्शन. बेटा इट इज ऑल रिलेटेड टू योर ओल्ड आर्टिकल्स. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, I told you earlier that thumb will be in the direction of the current, fingers will be around the, if you have a straight wire, fingers will give you the direction of the magnetic field. Here, if you will take thumb in the upper direction, fingers will curl in the counterclockwise direction. ठीक है, so direction of the magnetic field would be like this one. But on the other end, if you have a circular wire or coil, एक second, this is a circular wire and you have the current is passing in this direction, let's suppose in this direction. What would be the direction of the magnetic field? कैसे होगी direction of the magnetic field? It would be It will like, go right. yeah, it will be around this direction. Okay, you will curl your fingers in the direction of the magnetic field or in the direction of the current, and thumb will give you the direction of the magnetic field. Is it clear? Yes, sir. Okay, Yes, fine. अब एक फीमेल ने क्वेश्चन किया था कि समझ नहीं आ रही। बेटा किसने क्वेश्चन किया था कि समझ नहीं आ रही? Who is the girl? वो आप सर मैं रोल नंबर 39। अच्छा बेटा, सो क्या चीज समझ में नहीं आती राइट नाउ? सर मुझे ना डायरेक्शन की नहीं समझ आ रही। लाइक नीचे वाले में हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं और ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन फिर भी जब मिड में लाइंस है, जो दरम्यान में लाइंस है, वो दोनों ही एक ही तरफ जा रही हैं, तो इनमें कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, सो हेयर बेटा अब यहाँ पे क्या है कि इट इज क्या इनटू द पेपर है, आउट ऑफ द पेपर है, एट द अपर एंड, आउट ऑफ पेपर। आउट ऑफ पेपर। आप इस पोर्शन को स्ट्रेट कंसीडर कर लें, मींस दैट एरो इज टुवर्ड यू। ठीक है, इफ इट इज टुवर्ड यू, आपकी क्या होगा, एक छोटा सा पोर्शन मैंने लिया, टोल्ड यू अर्लियर कि यू कैन टेक इट एज ए स्ट्रेट टू, अगर आप छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं, थंब विल बी पॉइंटेड टुवर्ड यू, आपकी तरफ ही पॉइंटेड होगा। $39 रोल नंबर बेटा, इट वुड बी पॉइंटेड टुवर्ड यू। अगर Yes, करंट sir. आउट ऑफ current is coming out of the paper, so obviously thumb you will take in thumb in the direction of the current. ठीक है, and you will curl the finger, so what would be the direction of the magnetic field? यही होगी circular anti clockwise. Yes, sir. Okay, fine. Now coming toward the bottom side, no current is entering into the paper, so it means thumb will be away from you. यही होगा. Yes, sir. Curl your fingers. So what would be the direction of the magnetic field? Clockwise. Clockwise. So on the upper case it is anti-clockwise, on the bottom case it is clockwise. So at the center, ठीक है, at the lower end and the upper end of the wire, they both are in the same direction, aren't they? Yes, sir.
Is it clear, beta? Yes, sir. Okay, fine. Acha, now up toward this point, we want to find out the what would be the magnetic field at point P due to the upper end of the wire and due to the upper end of the lower half. यानी if we are getting here, एक आपके पास wire है, ठीक है? This is the wire, straight wire. So magnetic field is normally like this one. Okay, you will get like this one, you will get like this one, you will get like this one. Well, it will get like this one up to the infinite point. ठीक है? यहाँ पे करके so up to the infinite point. ठीक है? So just like that, here we have just given those values of the magnetic field which are close to the wire. So if in actual case we assume that they will go up to the infinite line. So the direction of the magnetic field at point P due to this half of the wire, ठीक है, जो कि upper half है, इस साइड की वजह से क्या होगी? Obviously we calculated that it would be in this direction. Okay. Now if I want to find out the magnetic field at point P due to the lower half of the wire, तो लोअर हाफ का अपर पोर्शन कौन सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी आएगी पीप में? इट वुड बी, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा सर्कल को बड़ा कर लेता हूँ. ओहो, इट वुड बी लाइक बेटा दिस वन. यही बनेगा ना? किसी का माइक बेटा ऑन? काइंडली ऑफ कर दे माइक. रोल नंबर 17 आई थिंक. अच्छा, अब इन द अपर हाफ ऑफ द पोर्शन रोल नंबर 17 किसका है बेटा? अच्छा नो, एक सेकंड बेटा, मुझे ये सारा रिमूव करना पड़ेगा पहले. बेटा किसी की वीडियो ऑन हो रही है? ये भी 17 की. एक सेकंड दीजिएगा बेटा, बस मैं कुछ और देख रहा हूँ अभी. अच्छा, अब जस्ट इमेजिन आपके पास क्या है कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लोअर हाफ. ठीक है, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन? ऑब्वियसली it would be like the direction of the magnetic field would be like this one. If I will sum up it, यही होगा due to this half, lower half. जी सर. Can anyone tell me कि यही होगा कि लोअर हाफ की जो है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ डिस्टेंस को, so it would be like this one. Yes sir, clockwise होगी. Clockwise. Okay. So at point P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू आपके पास अपर हाफ, दैट वुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज. यू कैन सी हियर दैट इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज. यही है? जी सर. So obviously क्या होगा? They will both cancel out. So it means, and same phenomena take place at the bottom. So it means that outside the solenoid, these two fields will cancel out. The only field that will exist will be inside the solenoid. So when we assume the ideal solenoid, so we assume that the magnetic field outside the solenoid is zero, while inside it is आउटसाइड जीरो होती है सर, अंदर की तरफ होती है maximum concentrated and uniform. At the outside, at the
सर आपकी आवाज कट जाती है साइड देयर इज अ मैक्सिमम मैग्नेटिक इफ एनीवन आस्क। सो जब ये कर लिया हम लोग मैक्सिमम, ठीक है। The recording has stopped. यार मैं कह रहा था सर की बार बार आवाज कट रही है। बिल्कुल यार, सही कह रहे हो। दरम्यान में आके तो 2x पे भी हो यार मेरी बात सुनो, ये सर ने कोई बात की है कि लेक्चर This meeting is being recorded. जी। अच्छा, ये कौन पूछना चाह रहा था कि साथ में कोई बात की है, फिजिकल लेक्चर लेना है? सर वो एक बच्चा था वो पूछ रहा था। तो मेरे से पूछ लेना बेटा, इतने बेचारा से मैं क्यों पूछ रहा है? वो कंफ्यूजन थी उसके बारे में ही पूछ रहा था कि फिजिकल क्लास आपने लेनी है सर आगे। यार मैं तो डर गया था आपकी आवाज सुन के कि इतना गुस्सा करके कर रहे हो, पता नहीं क्या हुआ। सर बस ये हॉस्टल में थर्ड फ्लोर पे हो सकता है गर्मी चढ़ गई हो। गर्मी ना चढ़ाओ यार, गर्मी मुझे चढ़ गई तो फिर आपके पेपरों में क्या बनेगा? सर उसी की तो टेंशन है, पेपरों में क्या बनेगा? यार एक चीज है, कल आई वाज टेलिंग टू दी अब्दुल हसीब के आपके करैक्टर का पता उस वक्त चलता है व्हेन यू गो थ्रू दी हार्ड टाइम्स। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। और आई वाज शेयरिंग हिम with my example. I am not telling him the someone else example. There was a case when during exams, ठीक है, I slept ठीक 6 hours in 72 hours, ठीक है। In 3 days I slept 2 hours each day, ठीक है, because there was some reason कि it was quite difficult for me sorry to manage, ठीक है। So thing is कि आपके character का पता उसी वक्त चलता है when you are coming through the hard time. So what I am saying here कि आप लोगों के लिए सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरे ख्याल से आपको नेटवर्क इशू है सर मीटिंग से निकल गए मेरे ख्याल से, उनका नेट इशू है। नेट इशू नहीं है बेटा, मैं म्यूट कर रहा था, तो छोटा बच्चा आ गया था पास, लेकिन सुन रहा होता हूँ आपकी बातें, टेंशन ना लो। अच्छा, अब ये आती है प्रॉब्लम, ये आती है बेटा कि व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू के यू आर ऑल कंप्लेनिंग टू मच, ठीक है। और लास्ट नाइट बल्कि यस्टरडे, मतलब मैं भी मेरे ख्याल से आई मेड कोई 10 to 15 calls या इससे ज्यादा ही होंगी in order to sort your date sheet matter, ठीक है। अब्दुल हसीब और सारम सर दोनों असल में ना बच्चे परेशान बहुत हो गए थे यकदम से। वो 28 से 24 पे जब पेपर आए हैं ना, तो वो 4 दिन का गैप जब खत्म हुआ ना, तो सर परेशानी बहुत बढ़ गई थी। नहीं बेटा, रीजन ये है कि लास्ट नाइट सारम भी और दोनों आपके सी हसीब भी, तो वी टॉक number of times ना with each other and even I talk, मैं बताया था इन्हें कि I am also in charge of the Zubair Hall RT हूँ। So then I talk to, इन्होंने कहा कि आप बात करें, मैं then I talk to senior warden, फिर जो भी solution था इन्होंने कहा कि हमारे डेट शीट इंचार्ज ने कहा कि you should talk with the senior warden if he can manage the hostel can stay open. So although it was not my problem, ठीक है, ये मेरी problem नहीं थी, it was basically duty of your department to call senior warden and to ask about the favor, ठीक है। लेकिन then even then मैंने इसलिए किया कि ठीक है, ओके क्लास है, सडनली ऑब्वियसली शॉक होता है, ठीक है। सो ये है कि उनसे कुछ डिस्कशन हुई है, देन देखते हैं कि अब ये सारम और ये मिलते हैं उनसे तो क्या होगा। वो दे आर बेसिकली फॉलोइंग दी नोटिफिकेशन, सो इन केस के अगर वो जाते हैं, इनको कुछ सोल्यूशन बताते हैं, तो अगर वो फॉलो करते हैं और सॉर्ट आउट हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबल आपका 28 को जो है वो चला जाएगा। तो इन केस अगर नहीं भी जाता, सो ऑलवेज रिमेंबर के आपके करैक्टर का जो शो होता है कि आप कितने, वैसे आप कहते हैं मैं बड़ा तगड़ा हूँ, मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ, मैं लड़ाई वाला हूँ, मैं ये हूँ वो, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं होती, बट जब एक्चुअल सिनेरियो आता है तो आप परेशान भी हो जाते हैं। तो वहां से चीजों को लर्न करना सीखें। एक चीज याद रखिएगा
कि if it is happening to you, it is happening to your whole session, मतलब आपके whole chemical के सेशन, both A और B सेक्शन, दोनों सब स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है. So if anyone is getting maximum marks 60, ठीक है, तो he will get A grade. If anyone is getting okay जी 28 को कर लेंगे तो most probable 90 आ जाएं आपके मार्क्स, even then he will get A grade. बाकी relative में आ जाएंगे, ठीक है. So it doesn't make a difference कि whether they are going to take place, the exam is going to take place on 24 or 28. तो ये चीजें बेटा इनको इस तरह डील किया करें. यू यूजली टेक इट क्वाइट सीरियस, जो कि बड़ा था. बल्कि कल तो ये अब्दुल हसीब भी मेरे पे गुस्सा हुआ था, फिर मैं इस पे गुस्सा हुआ. आज इसलिए बेचारा चुप चुप करके बैठा हुआ है, ठीक है. तो सर आई एम सॉरी सर अगर आपको ना मेरी बात ऑफेंसिव लगी, लेकिन सर ये है ना कि हमारा यही जो ऑफेंसिव नहीं है यार, ये तो वैसे आप लोग थोड़े से परेशान हुए हुए, तो मैंने कहा कि चलो शेयर कर दो. मेरा इशू है बेटा एक चीज याद रखो, नहीं बेटा, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है. मुझे कोई कभी किसी से, मैं मतलब ना, ये जो होता है आपका स्टूडेंट्स है ना, जस्ट लाइक पेरेंट्स जो होते हैं ना, आपकी बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, ठीक है. आपका कोई हो, उसको थोड़ा सा कहते हैं कि बेहतर तरीके से कर लें, ठीक है. उसको जरा बेहतर तरीके से करें. अच्छा आपने खाना इस तरह खाया, इस तरह नहीं खाना चाहिए, इस तरह खाना चाहिए था आपको, ठीक है. वो प्यार से कहते हैं समथिंग लाइक दैट. तो मैं भी आपसे मजाक में इसलिए लगा हुआ था कि गुस्से में कर रहे हो, तो ऑफेंसिव वगैरह कोई नहीं लगी. वो तो मुझे भी पता है कि आप लोग जस्ट यू आर अंडर प्रेशर, ठीक है, जो भी है. एक वैसे जस्ट मजाक था कि आपको प्रेशर से निकालने वाली बात थी, वरना यार आपने क्या करना है गुस्सा करके, या गर्मी में तो वैसे हो. जी बेटा. सर सीएस डिपार्टमेंट पेपर्स भी 28 से स्टार्ट हो रहे हैं. उनके पेपर्स भी 7 है और हमारे भी 7 है. तो सर उनका नहीं कोई इशू होगा हॉस्टल का? तो आप बेटा नहीं, ऑब्वियसली मेरी कल जो सीनियर वार्डन साहब से बात हुई थी, दे आस्क मी, मैंने उन्हें बताया इस तरह का इशू है, एंड कहते हैं देयर डिपार्टमेंट डिडंट आस्क मी, ठीक है. उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं है. अगर इन केस के मेरे तक कोई ऐसी एप्लीकेशन पहुंचती है, तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दैट एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज वाया नोटिफिकेशन के आपके 4 या 6 हॉस्टल खाली होने हैं. तो कहते हैं कि ऑब्वियसली जो है वो मतलब इस तरह का इशू होगा, तो दे विल ऑब्वियसली हेल्प द स्टूडेंट्स आउट. तो मुझे किसी ने कहा ही नहीं. मेरी जो कल उनसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा मुझसे तो किसी ने बात ही नहीं की ना. सो दिस व्हाट द मेन रीजन है कि उनसे किसी ने बात नहीं की. मैं इवन सारम और हसीब को भी ये कह रहा था कि आपके वो डेट शीट इंचार्ज को चाहिए था कि वो बात करते हैं उनसे. तो मैं क्योंकि हूँ हॉस्टल में, मुझे पता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की लास्ट डेट कुछ होती है. हमें कहा जाता है कि ये 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट्स अगर आपके हॉस्टल में हैं तो दे कैन स्टे हियर फॉर कपल ऑफ डेज, क्योंकि इनके एग्जाम्स जाते हैं, ठीक है. बाकियों को आपने मतलब ना भेज देना है घरों को. तो ये है कि मेन उनसे बात नहीं हुई. तो होपफुली जब आप मंडे को ये सीब और सारिम जाएंगे तो ये दे कैन टॉक टू हिम, ठीक है. और इंशाल्लाह दे विल ये सॉर्ट द प्रॉब्लम आउट, ठीक है. तो वजह ये है बेटा, हम टीचर्स को भी पता है कि आपके साथ प्रॉब्लम है. सारी चीजें जहां तक हम लोग कर सकते हैं बेटा अकोमोडेट करते हैं, और ये चीज नहीं है कि नहीं करते. आप देखें, आपके अगर कम नंबर आएंगे तब भी किसी टीचर को कोई बेनिफिट